Welcome students. Welcome to the ChemQuest. And today in analytical chemistry, we will discuss about principles of chromatographic separations. But before going into principles, we will discuss another classification which is important to understanding the principles. So let's start. So chromatographic techniques can be classified according to whether the separation takes place on a planar surface or in a column. So in the previous two lectures, we have discussed the classification of chromatographic techniques basically based upon the different phases, that is stationary phase and the mobile phase. And now before going into principle, we will first see that uh, chromatographic separation can take place on planar surface or in the form of column. We have used these terms in the previous lectures. For example, we use planar surface in case of like paper chromatography or thin layer chromatography, while column we have also discussed in the first lecture, in which Michael Sweth used column filled with calcium carbonate for the separation of different pigments present in chlorophyll. Okay, so planar surface and column chromatography or planar chromatography, it can be further subdivided into gas and liquid chromatography, and by the physical form, solid or liquid of the stationary phase, and the nature of the interactions of solute with it, known as absorption mechanisms. So, there are different ways by which we can classify chromatographic techniques, right? For example, if a gas is used as mobile phase, we may call it as gas chromatography. If mobile phase is liquid, we may call it as liquid chromatography, as well as we may classify them on the basis of the physical form of stationary phase. For example, if stationary phase is solid, we will call it as adsorption chromatography, and if stationary phase is liquid, we will call it as partition chromatography. Besides this, we may classify it on the basis of the nature of interaction between the solutes and the stationary phase, right? And this nature of interaction between the solute and the stationary phase, we call it as absorption mechanisms, right? Which is actually the topic of next lectures. So in table 1, we will see some most important forms of chromatography, which is based on different combination of stationary and mobile phases and instrument or other requirements. So on the next slides, we are going to see a table in which we will see a classification of different chromatographic techniques in a summarized way. Okay, so first we will see what is planar chromatography. So this is a setup of planar chromatography, right? और प्लेनर क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड पे भी कहा, पेपर क्रोमेटोग्राफी या टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दिस इज काइंड ऑफ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी. और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? दिस इज अ सेपरेशन टेक्निक इन विच द स्टेशनरी फेज इज प्रेजेंट एज और ऑन आ प्लेन. ठीक है, तो जिस तरह से ये स्टेशनरी फेज है, ये पेपर है और ये एक प्लेन में प्रेजेंट है, जैसा कि ये प्लेन एक्स एक्सिस है, राइट? तो इसलिए हम इसको प्लेनर क्रोमेटोग्राफी कहेंगे. इसकी एग्जांपल्स जैसा कि मैंने कहा, पेपर क्रोमेटोग्राफी है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है. और हम ये जो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है, इसको हम ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं. Then this is column chromatography. This figure describe
कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें देखें सबसे पहले नंबर 1 पे you have a column, right? This column, this may be composed of glass, or it may be made of some kind of metal. You can see here the stopcock here, right? And we will fill this column with the stationary phase. अब stationary phase जो है वो हमने जैसा कि पिछले lectures में देखा, stationary phase may be solid like calcium carbonate. It may consist of resins, or it may consist of gel. तो स्टेशनरी फेज जो है वो डिफरेंट मटेरियल की हो सकती है. ऊपर से ये हम सैंपल लोड करेंगे, और सैंपल लोड करने के बाद हम ये मोबाइल फेज ऊपर से लोड करेंगे. सो दिस इज सैंपल, दिस इज द मोबाइल फेज. और अब इसमें क्या है कि इस सैंपल के अंदर राइट जो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस हैं स्टेशनरी फेज के साथ, वो बाउंड कर जाएंगी, वो पीछे रह जाएंगे कॉलम में, और जो वीकर इंटरेक्शन वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे आ जाएंगे. ठीक है. और इस तरह से ये देखें, जब हम ये स्टॉप ऊपर से ये हम सॉल्वेंट या मोबाइल फेज जो डालेंगे, जो इल्यूशन के प्रोसेस में हेल्प आउट करेगा, तो जो वीकर इंटरेक्शन वाले हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ पहले निकल आएंगे. इनको इल्यूटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं ना. और जो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस वाले मॉलिक्यूल हैं वो इस कॉलम के अंदर रह जाएंगे, और वो बाद में आप उनको हासिल कर सकेंगे. सो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, which is you can see that this is distinctly different from planar chromatography. So now come to the subject matter of this lecture, that is principles of chromatographic separation. So if the technique is paper chromatography, then stationary phase will be water, which will be held in the pores of paper. So here it is written paper, which is absolutely wrong. ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं. मैं क्या करूँगी कि जस्ट इसको यहाँ से काट देती हूँ, और मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप पीछे से जाके वो देख सकते हैं इस लेक्चर में भी और पिछले वाले लेक्चर में भी. एज आई हैव टोल्ड यू, पेपर क्रोमेटोग्राफी में वाटर ही लिक्विड स्टेशनरी फेज के तौर पर यूज़ होता है, और वाटर के सपोर्ट के लिए पेपर यूज़ किया जाता है. ठीक है, पेपर दिस इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में वाटर इज़ यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज विच इज़ सपोर्टेड ऑन पेपर. और इसमें जो मोबाइल फेज़ है वो लिक्विड होती है, फॉर्मेट इज़ प्लेनर. और जो ऑप्शन मैकेनिज़्म है, यानी जिसके थ्रू से सल्यूट मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं स्टेशनरी फेज़ के साथ, वो ऑप्शन मैकेनिज़्म मेनली इसका पार्टीशन है. लेकिन बहुत कम हद तक एडजॉर्प्शन या आयन एक्सचेंज या एक्सक्लूजन का प्रोसेस भी हो सकता है. लेकिन जो मेन ऑप्शन का मैकेनिज़्म है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, दिस इज़ कॉल्ड एज पार्टीशन. बिकॉज द सल्यूट पार्टीशन, जो सल्यूट के कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से सेपरेट होते हैं कि वो डिफरेंट सल्यूट्स अपने आप को पार्टीशन कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं बिटवीन द मोबाइल लिक्विड फेज एंड द स्टेशनरी लिक्विड फेज. क्योंकि दोनों फेजेस जो हैं वो लिक्विड ही होती हैं, यानी मोबाइल फेज भी और स्टेशनरी फेज भी. इसलिए सल्यूट के पार्टिकल्स अपने आप को पार्टीशन करते हैं बिटवीन द मोबाइल लिक्विड फेज एंड द स्टेशनरी लिक्विड फेज. सो जो मेजर मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन का पेपर क्रोमेटोग्राफी में, वो पार्टीशन होता है. अच्छा, दूसरा जो टेक्निक है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है. इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो सिलिका हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, आयन एक्सचेंज रेजन हो सकता है, या फिर कंट्रोल्ड पोरोसिटी सॉलिड हो सकता है. ठीक है, यानी एक ऐसा सॉलिड जिसके पोर्स का साइज जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं. जबकि इसमें मोबाइल फेस लिक्विड होती है, दिस फॉर्मेट इज अगेन प्लेनर. और इसका जो मेन ऑप्शन मैकेनिज्म है वो एडजॉर्प्शन है. एडजॉर्प्शन मैं लेक्चर नंबर 1 में बड़ी तफसील से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और टू सम एक्सटेंट इसमें पार्टीशन, आयन एक्सचेंज या एक्सक्लूजन टू सम एक्सटेंट वो भी एप्लीकेबल हो सकते हैं. लेकिन मेन जो ऑप्शन मैकेनिज्म है इसमें एडजॉर्प्शन है. और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज सॉलिड है और मोबाइल फेज लिक्विड है, और ये फॉर्मेट है इसका प्लेनर क्रोमेटोग्राफी. एंड द मेन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इज एडजॉर्प्शन. देन वी हैव गैस क्रोमेटोग्राफी. अगेन गैस क्रोमेटोग्राफी इज ऑफ टू टाइप्स, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी
एंड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसमें मोबाइल फेज दोनों में गैस होगी, और जहाँ पर गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी लिखा है वहाँ पर स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी, और जहाँ पर स्टेशनरी फेज लिक्विड होती है वहाँ पर जो मैकेनिज्म ऑफ ऑप्शन है वो पार्टीशन होगा। जबकि गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी का मतलब मोबाइल फेज अगेन गैस है और स्टेशनरी फेज सॉलिड है। और स्टेशनरी फेज ओके, तो जहाँ पर स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी वहाँ पर जो जॉप्शन का मैकेनिज्म है वो एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। और दिस इज़ अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यानी गैस क्रोमेटोग्राफी जो है हम हमेशा इन द फॉर्म ऑफ कॉलम परफॉर्म करते हैं। ओके, देन वी हैव लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये है कि जो मोबाइल फेज है वो लिक्विड होगी, ठीक है, एज यू कैन सी हेयर लिक्विड, राइट। अच्छा, अब जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC, या फिर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी जो नॉर्मल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है या ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है नॉर्मल, ये हमने क्लास में भी परफॉर्म किया है, ठीक है। तो उसमें हम हाई प्रेशर तो यूज़ नहीं करते, इसलिए वो प्रोसेस ज़रा स्लोली होता है। तो हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का मतलब ये होगा कि हम लिक्विड को या सॉल्वेंट को पुश करेंगे अंडर प्रेशर, इस वजह से ये प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। इस वजह से हम इसको हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो जो HPLC है उसमें हम स्टेशनरी फेज, सॉलिड और बॉन्डेड फेज, ये सॉलिड या बॉन्डेड फेज है, लेकिन मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड होगी। और इसका फॉर्मेट कॉलम होगा, मॉडिफाइड पार्टीशन, या चूँकि स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो प्रेफरेबली इसको एडजॉर्प्शन, इसका जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होगा। इसके अलावा साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, अब इसकी स्टेशनरी फेज है कंट्रोल्ड पोरोसिटी सॉलिड। और ये चूँकि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, और जैसा कि मैंने कहा इसमें मोबाइल फेज इस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की सारी टाइप्स में लिक्विड ही होगी, सिर्फ जो स्टेशनरी फेज है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसमें साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में कंट्रोल्ड पोरोसिटी सॉलिड होगा। ये साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी पिछले लेक्चर में मैं अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक। तो इसके अलावा जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से इसको स्टडी कर लिया है। तो इसमें स्टेशनरी फेज जो है आयन एक्सचेंज रेजन होगा, और बॉन्डेड फेज मोबाइल फेज अगेन लिक्विड होगी, और ये फॉर्मेट कॉलम होगा। इसमें आयन एक्सचेंज के थ्रू से इसका जॉप्शन मैकेनिज्म आयन एक्सचेंज है। देन वी हैव कायरल क्रोमेटोग्राफी, और इसमें स्टेशनरी फेज है सॉलिड कायरल सेलेक्टर। थोड़ा सा इसके मतलब हम मज़ीद आगे जाके पढ़ेंगे ये जो कायरल क्रोमेटोग्राफी है, और ये फॉर्मेट इसका कॉलम है, और इसका जो जॉप्शन मैकेनिज्म है वो है सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। I hope that you people have understood about the principles. If there is any confusion, you are very welcome to ask. So now we will have a brief overview of different techniques. थोड़ा सा हम खुलासा देख लेते हैं तो इस लेक्चर का। अब इसमें HPLC is particularly versatile, having several alternative modes suited to different types of solute. So in the present scenario, or in the present era, or in the modern era, HPLC बड़ी versatile साबित हुई है for the separation of different solutes, क्योंकि इसमें हम different टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि HPLC में हम आयन एक्सचेंज और इसके अलावा आयन क्रोमेटोग्राफी, दीज आर द मोड्स दैट एनेबल मिक्सचर ऑफ ईदर एनाइनिक और केटाइनिक सल्यूट्स टू बी सेपरेटेड। तो HPLC वाले कॉलम में हम आयन एक्सचेंज रेजन्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आयन क्रोमेटोग्राफी, दीज आर द मोड्स विच आर यूज्ड इन HPLC इन ऑर्डर टू सेपरेट द मिक्सचर्स ऑफ ईदर एनाइनिक और केटाइनिक सल्यूट्स। Then we have size exclusion chromatography, SEC, and chiral chromatography. These are two additional modes used for separation of high relative molecular mass solutes and enantiomers respectively. ठीक है, तो इसी तरह HPLC के अंदर हम ये वाले मोड्स, एक्चुअली ये मोड्स इंस्ट्रूमेंट के ऊपर दिए होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सल्यूट्स विच वी वांट टू सेपरेट, वी कैन यूज़ डिफरेंट मोड्स, राइट। तो इसमें साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और या फिर कायरल क्रोमेटोग्राफी, दीज आर द मोड्स विच वी कैन यूज़ फॉर द सेपरेटिंग मिक्सचर्स ऑफ
relatively molecular mass fluids, relative molecular mass fluids and enantiomers. तो अगर हम solutes को separate करना चाहते हैं based on their molecular mass, then we will use the mode of size exclusion chromatography. और अगर हम enantiomers को separate करना चाहते हैं, then we can use chiral chromatography. Thank you very much for watching this video. I hope that you have understood and enjoyed this lecture. So if this is so, please subscribe, like and share. As you know, sharing is caring. So we will meet with another lecture in the next video. Till then, Allah Hafiz.